First of all, it's a privilege to be moderating a debate at the Radio Festival on World Music Day. First, and I'm sure I speak for all of us when I talk about the fact that radio for us has been a long-term love, and I think we are all privileged, so privileged to be a part of a medium that is arguably the warmest medium and the most intimate medium in the world. And as Queen once said, radio, what's new? Radio, someone still loves you. And it's great to see that there's so many lovers of radio here who are here to listen to us. रेडियो पे सबसे बड़ा पाप होता है किसी को अपना नेम आईडी चुरा लेना. तो मैं किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा. एवरीवन विल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड ब्रीफली टेल यू व्हाट दे डू सो दैट यू नो व्हाट दिस इज अबाउट, एंड देन वील मूव ऑन to the session, which of course is gender bender or gender barrier. We'll talk a little bit more about that a little later, but let's get a little intimate with the people who are part of the panel. सबसे पहले तो जिनसे सीखा उनके साथ पैनल पे बैठने का प्रिविलेज. मनोज मयंकर इज समवन who has taught me just about everything that I know about radio. So, Manoj, it's a privilege to be sitting next to you and have you on the panel. पाई लागू सरकार. तो मतलब कुछ शब्द सर. मेरा नाम मनोज माइंडकर है. मैं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में हूँ और मुझे यहाँ पर लगभग 31 साल हो गए इस संस्था में. एंड एट द मोमेंट आई एम इन चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग radio magazines. One is the National Literary Magazine, one is the National Cultural Magazine, and there's another magazine which is the National Science Magazine, and once in a while the National Youth Magazine. यहाँ magazine का मतलब printed पत्रिका से नहीं है जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं. It's also a radio format. Steve, I'm sure there are radio magazines at other places also. तो बस एक अदना सा कर्मचारी हूँ और आवाज़ और कुछ हद तक संगीत की सेवा करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले आप सबको सलाम. मैं श्रीनगर से हूँ, कश्मीर से, और हमारे लिए रेडियो करना पर से जो यहाँ मैंने अभी देखा और जो मैंने सुना बहुत ही अलग है. यहाँ पे लोग ऑन योर फेस रेडियो करते हैं, हमें वहाँ बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. मेरा नाम नासिर है, मैं पिछले 10 साल से रेडियो कर रहा हूँ. और व्हेन आई केम इनटू दिस रेडियो इंडस्ट्री आई स्टिल रिमेंबर आई वेंट टू द AIR फर्स्ट टाइम, और मैं अपनी मॉम के साथ वहाँ गया. तो आई वॉज फैसिनेटेड बाय द स्टूडियो एंड विद द लाइट्स देयर. सो आई थॉट व्हाट इज़ दिस, एंड माई मॉम टोल्ड मी दैट दिस इज़ हाउ द एयरवेव्स उनको आवाज़ मिलती है, आपकी आवाज़ बाहर जाती है. और फिर आई वाज सो फैसिनेटेड. आई स्टिल रिमेंबर कि मैं रात भर यही सोच रहा था. और आई रिमेंबर कि मैंने अपने डैड को बोला था कि मेरा नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो मुझे रेडियो गिफ्ट, आई वुड वांट अ रेडियो. तो हमारे जब एग्ज़ाम हुआ करते थे तो मैं क्या करता था, मैं चोरी एक कमरे में बैठा करता था और फिर उसके बाद आई यूज़ टू लिसन टू रेडियो. वी यूज़ टू लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स. एंड I'm fortunate enough that after 10 years I'm sharing this stage. Right now I'm with 95 FM Tadka, and I see the programming for J&K, plus I do the morning show also. And 10 साल से मैं रेडियो कर रहा हूँ. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ कि रेडियो ने मुझे एक पहचान इसलिए दी क्योंकि मैं अपनी उम्र के 17 साल तक बहुत स्टैमर किया करता था. So I used to stammer a lot. I still remember that I would change my name, I would change my father's name, I would change where I lived, my address, just because I could not say that properly. And now that I'm on radio talking continuously and being paid for it, it's such an amazing feeling. And to be here in this gathering, for me it is an auspicious gathering, because as a a radio presenter, being a radio presenter all the while, all your ears, you just dream of being somewhere where you can come and share the stage with all the people who you see on TV, who you see on social media. I am a big fan of your movie reviews also. So we see that हम ये सोचते हैं वहाँ बैठ के कि क्या हम ये कभी कर पाएंगे, क्या हमसे ये पॉसिबल होगा. वी आर बैटलिंग एन इंटरनेट शटडाउन ऑल्सो, जो कि पिछले 6 महीने से वहाँ नहीं चल रहा है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट थिंग एज ए रेडियो होस्ट, एज ए रेडियो प्रेजेंटर, दैट आप अपनी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे. ये लीजिए. सर्वप्रथम तो आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
और मेरा नाम राजेंद्र नेगी है और मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, जो कि टिहरी डैम से ज़्यादा जाना जाता है आज, और वहाँ पे एक रेडियो स्टेशन हम लोगों ने आज से 19 साल पहले एक आंदोलन की तरह शुरू किया था जिसका नाम हेवल वाणी है। और मैं जो है रेडियो के साथ भी जुड़ा हूँ, इस विचार के साथ भी जुड़ा हूँ। और क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है तो अधिकतर लोग रेडियो ही सुना करते थे। आज ज़रूर नए नए साधन आ रहे हैं, लेकिन साथ में इस आंदोलन के साथ साथ जो है खेती से भी जुड़ा हूँ, इलेक्ट्रिशियन भी हूँ और थोड़ा बहुत कुछ अखबारों के लिए लिखता भी हूँ। और मुख्य तौर पर जो जुनून है वो रेडियो को लेके जब मैंने नेपाल में जाके देखा कि वहाँ पर हमारे जैसे भौगोलिक स्थिति में लोग, गांव के लोग खेती किसानी के साथ, पशुपालन के साथ रेडियो चलाते हैं, वो जो देखा उसके बाद, क्योंकि भारत में पॉलिसी तब एकदम विचारणीय थी उस समय, 2001 की मैं जब बात कर रहा हूँ या शुरुआत हुई थी, तो उससे जुड़ के लगा कि कभी हम भी अपनी जो गढ़वाली भाषा है उसमें रेडियो स्टेशन चला पाएंगे, क्योंकि यूनेस्को ने भी कहा था कि गढ़वाली भाषा खत्म होने वाली सूची में डाल दी गई है। तो ये चिंता, और आज भी क्योंकि उत्तराखंड अलग स्टेट बना है, उसको भी 18-20 साल हो गए हैं, तो अभी भी कोई ऐसा स्टेशन गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे ऑल इंडिया रेडियो हो, जो गढ़वाली, कुमाऊनी या जो जौनसारी है इस भाषा में 10 घंटे भी कोई प्रोग्राम नहीं चलाता है, सिर्फ जो कम्युनिटी रेडियो है वहाँ पे, उनके अलावा। तो इन सारी चीज़ों को लेके इस मूवमेंट से जुड़े और फिर आज तक हम ये इस अभियान के साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ वो रेडियो में सफाई भी करता है, वो जिसको हम जो कमर्शियल रेडियो में उसको आरजे बोलते हैं, हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं एक वॉलंटियर है, एक स्वयंसेवी है, साथ में वो कार्यक्रम प्रस्तुत करता, हम उसको बोलते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और ये सिलसिला 400 लोगों तक जा पहुंचा है पिछले 18 सालों में। 400 लोग अब तक काम कर चुके हैं, कोई 6 महीने करता है, कोई 2 साल करता है, कोई 8 साल करता है, और मैं अभी 18-19 साल से जुड़ा हूँ। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें हम लोग हेवल वाणी के साथ जुड़े हैं। हेवल एक रिवर का नाम है, मैं आपको बता दूं, छोटी सी रिवर है, जबकि हमारे बगल में गंगा भी बहती है, लेकिन हमने उसका नाम नहीं रखा। हमको जीवन देने वाली वही नदी है, गंगा नहीं है हमारे लिए, तो हमने उस नदी जिससे हमारा जीना मरना है उसका नाम जोड़ के रखा है। थैंक यू। मेरा नाम गिनी है। मैं रेडियो सिटी पे सुबह का शो करती हूँ 7 से 11 का। मैं रेडियो पर जनरली जानी जाती हूँ लड़ाई करने के लिए, लोगों पे चिल्लाने के लिए, उनसे रोज़ आर्ग्यूमेंट और डिबेट करने के लिए। एंड टुडे आई हैव टू टेल यू दिस, I almost feel like I have achieved something massive from a man when I started radio। और ये बहुत साल पुरानी बात है। एक सर बैठे हैं इस पैनल में जिन्होंने मुझे बोला था, तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती ना, तुम एक काम करो, थोड़ा अंग्रेज़ी प्रैक्टिस करो, फिर अंग्रेज़ी के शोज़ करना। वो मनोज थे। एंड टुडे टू शेयर अ पैनल विद हिम इज़ जस्ट अमेजिंग। आई फील वेरी 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 प्रिविलेज्ड अबाउट दिस। इट इज़ वर्ल्ड रेडियो डे। आई थिंक वी आर ऑल हियर बिकॉज वी ऑल लव रेडियो। बहुत सारे डिस्कशंस आजकल ये भी हो रहे हैं कि रेडियो मर रहा है, डिजिटल रेडियो क्या आ जाएगा, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लोगों से मिलती हूँ जो रेडियो में थोड़े से भी इंटरेस्टेड होते हैं या जिन्हें रेडियो अच्छा लगता है। सो बिफोर वी गो एनीवेयर, एवरीबडी नीड्स टू क्लैप फॉर रेडियो। आई नीड दैट टुडे। हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब। मेरा नाम स्तुति है। फीवर 104 FM, यू हियर मी इन द मॉर्निंग ऑन रेडियो। आई एम कॉल्ड सुपर वुमनिया स्तुति। And I'm super excited to be here because Valentine's Day कल है, पर मेरे लिए आज है, क्योंकि I can safely say this is the most stable relationship in my life so far. I'm also someone who's having an affair with the camera. Everything is going digital. The camera has entered our studio. That's fun as well, but that also made me realize how much I'm still loyal to the medium and
what satisfaction radio gives us all. And the fact that we have a room full of people here today, an amazing panel. मैंने AIR में काम नहीं किया है, but I'm one of those who's a radio romantic. I grew up listening to AIR, and it was always a dream. I was always fascinated with that one voice that comes through that little box. And to be here with everyone on World Radio Day, very, very excited, and I hope we have a good conversation. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम सुजाता है और छोटा सा ही परिचय दूंगी ताकि हम विषय पर आ जाएं। मैं ऑल इंडिया रेडियो के प्राइमरी चैनल्स में हूँ इस वक्त, इंद्रप्रस्थ और राजधानी, लेकिन मैंने रेनबो और FM गोल्ड भी किया है। और गोल्ड का जो शुरुआत हुई थी, उसका जो सबसे पहला कार्यक्रम था अर्पण भक्ति संगीत का, वो मैंने प्रस्तुत किया था। और दानिश जी अभी कुछ देर पहले गए हैं यहाँ से, उनके साथ हमारी टीम थी, दानिश इकबाल, उज्जवल मोइत्रा और राजीव सक्सेना, विजय दीपक छिब्बर और मैं थी सुजाता। तो अभी कार्यक्रमों का ये सिलसिला जारी है। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आकाशवाणी की ओर से मुझे बहुत बड़ा मौका मिला एक इंटरनेशनल फोरम में काम करने का, डॉयचे वेले रेडियो जर्मनी में काम करने का मुझे ये अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम ग्रेटफुल टू आकाशवाणी फॉर दैट। और मुझे लगता है बाकी परिचय हम आपस में मिल ही जाएगा, लेकिन हम विषय पर आए तो सार्थक, ओवर टू यू। थैंक यू। रेडियो के प्यार में ना, प्यार दुधारी तलवार होती है यार, वो ना बड़ा डीरेल सा हो जाता है वरना। सो द टॉपिक ऑफ कोर्स दैट वी आर हियर टू डिस्कस इज जेंडर बेंडर और जेंडर बैरियर। रेडियो पे जेंडर मुझे मॉडरेट करने के लिए इसलिए बुलाया गया बिकॉज फॉर दोज हु हैवंट हर्ड द स्टेशन, आई डू अ सेगमेंट कॉल्ड बैटल ऑफ द सेक्सेस। The idea here is to get a couple and ask them opposite gender questions. उसमें ये होता है कि इस डिबेट के ऊपर हम लोग यही सोच रहे थे कि बात क्या करें, क्योंकि ऑनेस्टली मिसोजिनी अब जो है काफ़ी जाना माना कॉन्सेप्ट है और सबको पता है क्या नहीं करना है। लेकिन गिनी और मैं यही बात कर रहे थे कि हमारे लिए जो है कैजुअल मिसोजिनी इज समथिंग दैट समटाइम्स वी टेक सो फॉर ग्रांटेड दैट वी डोंट इवन रियलाइज व्हाट वी आर डूइंग। एंड इन टुडेज डे एंड एज एज रिस्पॉन्सिबल ब्रॉडकास्टर्स हम लोग फॉगहॉर्न हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं वो बहुत अब्जॉर्ब हो रहा है। और आई हैव हैड टू कैच माई सेल्फ फ्रॉम क्रैकिंग जेंडर जोक्स बिकॉज इट्स वेरी ईजी ना, क्योंकि हम लोग के साथ हम बड़े ही वैसे हुए हैं कि अरे पत्नी तो आपको तंग जरूर करती होंगी, और वो कह देना बहुत आसान है, पर आज की दुनिया में, आज की सिचुएशन में वो कॉनोटेशंस जो हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो एज रेडियो ब्रॉडकास्टर्स मेरे ख्याल से हम सुजाता के साथ शुरू कर सकते हैं, बिकॉज एज रेडियो ब्रॉडकास्टर्स आई थिंक दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन आवर शोल्डर्स ना। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जानें और अपने आप सेल्फ सेंसरशिप कितनी जरूरी है हमारे लिए। सार्थक, जो आज का टॉपिक है जेंडर बेंडर और जेंडर बैरियर, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि एज अ ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टिंग के लिए आई डोंट थिंक in broadcasting there is any space for gender bias. It's neutral. What matters is just and only good broadcaster, whether it be a male or female, through excellent presentation skills. तो जहाँ तक आकाशवाणी की बात है, ऑल इंडिया रेडियो की बात है, तो आई थिंक वी हैव नर्चर्ड and trained and given the best to the broadcasting industry, whether it be Suneet Tandon, Komal GB Singh, Baldevanand Sagar, Sanskrit newsreader, Devkinand Pandey, Asha Nivedi, and from the FM industries, I would say Roshan Abbas and Parvati Rathod, to name a few. और ये बहुत सारे हैं जो ऑल इंडिया रेडियो से ही ट्रेन होके गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ब्रॉडकास्टिंग में ऐसा कोई है कि कोई बायस होना चाहिए, जेंडर का कोई जो एक पृथकता है वो होनी चाहिए। तटस्थ है ये माध्यम, जो है वो न्यूट्रल है, तटस्थ है। जो भी अपनी आवाज़ से श्रोताओं के दिलों को छूता है, एक कनेक्टिविटी बनाता है, एक संप्रेषणता, जिसे शुद्ध हिंदी में कहूँ, वो जब आती है तो मुझे लगता है वो होता है। तो ये नहीं होता है। हाँ, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि
हम लोग जो हैं वो हम मेगालोपॉलिटन व्यू लेके आते हैं, हम लोग का मेट्रोपोलिस अपब्रिंगिंग है, बिग सिटी अपब्रिंगिंग है। हमारे साथ नासिर हैं, हमारे साथ उत्तराखंड की रिप्रेजेंटेशन है। तो कल्चरल नॉर्म्स और कल्चरल सिचुएशन जो है वो जेंडर पे किसी तरह से वो जेंडर के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस रखती है। आपने कुछ ऐसा सोचा है जो जेंडर बायस के हिसाब से कुछ हो जो आप अपने दिमाग में रखकर ब्रॉडकास्टिंग करते हो, ऐसा? मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आई कम फ्रॉम अ सिटी, जब सबसे पहले वहाँ रेडियो स्टेशन आया तो आई स्टिल रिमेंबर दैट द फर्स्ट 3 ब्रॉडकास्टर्स, द RJs वेर लेडीज। आई मीन आई केम फ्रॉम अ सोसाइटी जहाँ ये एक ऐसा प्रोफेशन था विच वॉज वेरी लाउड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और हेयर वी हैड अ प्राइवेट रेडियो स्टेशन विच हैड all 3 radio jockeys which were girls and they were stars overnights and we also looked up to them और मैंने उनसे बहुत सीखा when I joined private FM। so पर से सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो शायद वो अंडरस्टैंड हो चुका था सोसाइटी में कि नहीं ये लेडीज़ कर रही हैं तो यू नो वी नीड टू फॉलो सूट। लेकिन अब हम अगर गानों की बात करते हैं, आजकल कैसे गाने आ रहे हैं या उस दौरान कैसे गाने आया करते थे, देवर सॉन्ग्स ऑफ कोर्स जो हम रेडियो पे एज रेडियो ब्रॉडकास्टर्स एज रेडियो जॉकी सेल नहीं हो पाते थे हमसे, बिकॉज हमारी सोसाइटी वैसी होती थी। आई स्टिल रिमेंबर एक गाना था जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, हमारे रेडियो स्टेशन पे एक बार चल गया। वी हैड पीपल कॉलिंग आ रेडियो स्टेशन दैट ये गाना वी लव योर स्टेशन सो मच, बट हम ये गाना अपनी फैमिली के साथ आपकी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में नहीं हमसे हो पाता, वी कांट हेयर दिस सॉन्ग। सो फ्रॉम अ स्मॉल सिटी एंड फ्रॉम being from a society which is considered conservative, as a radio host, as a radio presenter, as someone who was on radio, who spoke a lot about the city and all the happenings around, we had to be very careful. There was a very thin line which we had to understand over the time that okay ये line है, ये हमें tread नहीं करनी है। जो ही वो line tread होती थी, listener इतना intelligent है वहाँ पे कि he used to understand, we used to get calls, social media पे हमें बोला जाता था, you know we were called out many times कि ये आपने क्यों बोला जबकि ये इस सोसाइटी के साथ शायद मिंगल नहीं करता। कंसिडरिंग उत्तराखंड, आपका क्या विचार है इसके बारे में, कंसिडरिंग दैट यू डील डायरेक्टली विद द कम्युनिटी और रेडियो उस हिसाब से इतना डायरेक्ट मीडियम है कि यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द कम्युनिटी, तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं विद द जेंडर क्वेश्चन? सर प्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उस धरती से आया हूँ जहाँ महिलाओं ने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट जो दुनिया को जगाने के लिए शुरू हुए थे। आपने चिपको मूवमेंट का नाम सुना होगा जी। ये मूवमेंट में सबसे बड़ा रोल जो है महिलाओं का था। और उत्तराखंड में क्या है कि जो पुरुष लोग हैं या तो आर्मी में हैं या वो होटल लाइन में हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर गांव में जो है अधिकतर जो पूरा परिवार की पावर है वो महिला के पास है। तो जो हमारे लिसनर्स हैं, जो काम करने वाले जो स्टेशन में जो वॉलंटियर हैं, स्वयंसेवी जो हैं, वो भी सारी हमारा स्टेशन जब से हम शुरुआत की है तो जो फाउंडर मेंबर भी थे उनमें 3 जो है वो लड़कियां थी और 2 लड़के थे। और आज भी 7 हमारे साथ जो काम करने वाली हैं वो लड़कियां हैं और 3 लोग पुरुष हैं। ये कंटिन्यूस चल रहा है, हर समय उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, 70-30, 80-20 या कभी कभी 60-40। और जो लिसनर्स भी हैं हमारे गांव में, क्योंकि हमारा कम्युनिटी रेडियो में क्या है कि हम हिंदी सॉन्ग नहीं चलाते हैं, हमारे जो लोकल फोक म्यूजिक है या जो गढ़वाली सॉन्ग है, जौनसारी हैं, कुमाऊनी हैं, हम उन गानों को चलाते हैं जो वहीं के सिंगरों ने गाए हैं लोकल स्तर पर। और हमारी भाषा गढ़वाली और कुमाऊनी है, उस कार्यक्रम को हम जो है प्रेजेंट करते हैं। बाकी हमारा हर समय ये नहीं है कि जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इंटरटेनिंग, हम हॉस्पिटल की बात भी करते हैं, हम जंगल में आग लगने की बात भी करते हैं, खेत में पानी नहीं आ रहा है तो उसकी बात भी कर रहे हैं, कहीं पर चोरी हुई है उसकी बात भी कर रहे हैं। तो जो जीवन के जितने चीज़ें हैं जीवन से जुड़ी हुई, वो चीज़ें रेडियो में आती हैं। लोग टेलीफोनिंग कॉल से जो है करते हैं, SMS से करते हैं, आजकल व्हाट्सअप पॉपुलर हो रहा है तो व्हाट्सअप से भी लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, साथ में गवर्नमेंट की भी जितनी चीज़ें हैं, उसमें कोई स्कीम है, कोई नई चीज़ लॉन्च हुई है, समझ जिससे मुझे याद आया मनोज, आई थिंक
something that I learned at my time in AIR was how to be sensitive in putting across the information. गानों के connotations होते थे, पुराने ज़माने से होते थे, नए ज़माने में भी अलग से आ गए. It is about sensitization, isn't it? And you were at an executive position. आप जो हैं हमें सिखाते थे कि किस तरह से जो बोलना है वो बोला जाए. Was there a template that you had to follow? Was there guidelines that you had to follow? How did that जो हमने आपसे सीखा वो आपने कहाँ से सीखा? Well, let me begin with I have the strange habit of making confessions. One of them is I'm not a radio jockey. I regret. And two, I've not done my master's in gender studies. So the question is, why am I here in the first place? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन stretching my imagination a bit, I can very easily say that I'm here today because of the simple reason that I'm a product of the University of All India Radio. मेरा कोर्स अभी चल ही रहा है, लेकिन मैं हूँ वहीं की पैदाइश है, वहीं की परवरिश है. ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मेरी बातों में शायद सार्थक के लिए जवाब भी निकल आए. ये वो संस्था है जहां आज से 70-80 साल पहले भी वुमन एज अ बॉस, एक आदमी की बॉस एक औरत, इस पर कोई मतलब सोचता भी नहीं था कि अच्छा ऐसा होता है. जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी मतलब इट वाज द गिवन देन एट ऑल इंडिया रेडियो. बताया जाता है, सीनियर्स बताया करते थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द फर्स्ट बैच ऑफ स्टेशन डायरेक्टर्स वाज रिक्रूटेड, देयर वर अ फ्यू वुमेन देन. आप सोचिए जो सेक्टर्स रहे होंगे और सेक्टर्स, वहां पे बायसेस थे जो धीरे धीरे वक्त के साथ ठीक हुए हैं. हमारे यहाँ वो बात थी ही नहीं कभी. मेरी अपने बॉसेस 2-3 टर्म्स में लेडीज रही हैं, औरतें रही हैं, एंड वो डिफरेंस कभी भी नहीं रहा वहाँ पर. तो ऐसी संस्था में जब आपकी ग्राउंडिंग होती है तो आपको और कुछ सूझता नहीं है दूसरा फिर. एंड दैट इज व्हाट यू हैंड ओवर टू कमिंग जनरेशंस. ये तो हुई बात पीछे की. अब मतलब हम करके आए मैचलेस म्यूजिक आवर, ऑल दैट जैज. फिर हम प्राइवेट रेडियो पे आए और नाम सुने माँ बहन का शो, और हमें लगा यार ये क्या हुआ, ये तो हमारा रेडियो नहीं था. एंड सडनली यू रियलाइज दैट द लो हैंगिंग फ्रूट यूज्ड टू बी मेकिंग फन ऑफ अ जेंडर, कि भाई लड़कियों का मजाक उड़ा लो कि वो तो मेकअप ही लगाती रहती हैं एटसेट्रा. It used to be a simple thing to do because, like fart jokes, it would always draw laughs. And suddenly, content was suddenly going towards that direction. And at some point of time, we all became, for a little bit of time, party to it, because we were also condoning it a little before we took our all individual stands and tried to, within that whole area, tried to see how we could change that. And Ginny, you've been part of that as well. Meow was, of course, the first women's talk radio station. So your perspective will be very, very cool with that, because at that very same time there was the whole Ma Behan Ka show concept. It's on my station, and I have to say I give that name, so I'm just be like quiet about that. It'd be great. It'd be great to have your perspective. So on that. I actually first, I wish God would give me the same bass you have, Manoj, just for 2 hours also. Yeah. I'd Absolutely. be very, very happy in Absolutely. life. Totally. I have lots of points to make on this one. Radio industry on the whole जो इस समय है, अगर आप प्राइवेट रेडियो स्टेशंस को देखें तो मोस्टली विमेन बॉसेस हैं इस समय भी, और पिछले 10 साल से मैं यही देख रही हूँ. तो औरतें हैं, बट इफ़ यू कंपेयर द नंबर ऑफ मैन वर्सेज विमेन, देर आर मोर नंबर ऑफ मैन, प्राइमरीली बिकॉज आई स्टिल थिंक दैट हर इंडस्ट्री में यही नॉर्म्स है. तो क्या कोई हायर करने से पहले ये सोचता है कि हमें लड़का चाहिए या लड़का ही चाहिए? मैंने ये कभी नहीं देखा. मैं मैनेजमेंट पोजीशन में भी थी, मैंने ये कभी नहीं देखा. बट हैविंग सेड दैट, आज जब मैं आपसे बात कर रही थी
कि किस तरह से गाने आते हैं, किस तरह से जोक्स बनते हैं। पिछले 6-7 साल पहले अगर आप रेडियो को देखें तो एक ऐसा ट्रेंड आया था जहाँ पे जितने भी नॉन जोक्स थे वो आदमी थे मोस्टली, एंड दे वर नोन थ्रू देयर स्लैपस्टिक ह्यूमर। प्रैंक कॉल्स सबसे बड़ी चीज़ थी रेडियो की, और हर शो पे आपको प्रैंक कॉल सुनाई देती थी, गाली सुनाई देती थी, एंड दैट वाज रेडियो, दैट वाज द बेसिक अमाउंट ऑफ ह्यूमर दैट एवरीबडी वाज डूइंग एंड इनकरेजिंग। एंड स्पेशली अगर आप प्राइवेट रेडियो में देखें, ड्राइव टाइम होता है जो कि डिफाइनिंग शोज़ होते हैं मॉर्निंग और इवनिंग, और दोनों में मुझे काफ़ी हद तक ये नज़र आ रहा था। पर धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल बदली हैं, धीरे धीरे सबने अपनी अपनी जगह बनाई है, तो आई थिंक हाँ ये हो रहा है। पर अभी भी जब आज आप बोल रहे थे कि जो हम जोक्स बनाते हैं, कई बार रेडियो पे जो हम कॉल्स चलाते हैं, आई एम ऑल्सो गिल्टी अबाउट द फैक्ट कि हम शायद इतना सोचते नहीं हैं उसके बारे में। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट होता है, और हाँ कई बार ऑफिसेज में, कई बार रेडियो पे जब हम लोग ऑफेंस लेते हैं गानों के ऊपर भी, सर आप बहुत लकी हैं कि अगर आप गाना बजाते हैं तो लोग आपको फ़ोन करके कहते हैं कि आपने ऐसा कैसे बजाया, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे बादशाह का गर्मी चलाना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल वांट। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू टेक ऑफेंस, बट देन अ लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इवन द मेन, स्पेशली द वुमेन ऑफ कोर्स, आर स्लोली अंडरस्टैंडिंग द एस्पेक्ट कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें हम रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन करें। इवन इफ यू आर मेकिंग अ जोक, you cannot make it at the expense of somebody. A joke or humor is जब आप किसी के साथ हंसते हैं, किसी के ऊपर नहीं हंसते। I think that has to still change. That still is a very biased gender issue. अभी भी मुझे ऐसा लगता है। पर अगर आप हायरिंग्स की बात करें, अगर आप अभी भी लोगों के बारे में बात करें जो रेडियो इंडस्ट्री में है, तो मुझे लगता है कि चाहे हम नहीं चाहते, पर ये फैक्ट है, हर रेडियो स्टेशन में ज़्यादा आदमी है। Sure. But staying with the on-air content again, Stuti, you've also done your share of radio. तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि हम लोग सब एक्चुअली अगर हम देखें, अगर हम अपने अंदर झांकें, हम लोग सब ने एक टाइम पे कहीं ना कहीं ये वाला किया। बैटल ऑफ सेक्सेस में मेरे साथ बहुत हो जाता है कि कभी-कभी निकल जाता है कि घर पर वापस जाके बॉस कौन है, वो सवाल एक निकल जाता है, अज्यूमिंग कि भाई बॉस तो हमेशा आदमी ही होगा। मतलब दीज आर assumptions that we are sort of जो अंदर ingrained है। तो what are your thoughts about the content? I was listening to everyone patiently, and I have a slightly different take, at least what I understood of the topic. As a radio professional, I feel कि इसका एक two-pronged answer हो सकता है। एक, that I'm a radio professional, I'm working in this organization, I'm a woman, and the work environment there. And the other is जब मैं रेडियो पे बोल रही हूँ, तो am I viewed as a radio jockey or a female RJ? ये डिस्टिंक्शन मुझे जब ऐसा महसूस कराया गया कि मैं एक फीमेल आरजे हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा। ओके, और ये मुझे कई बार महसूस कराया गया, और मुझे ऑड इसलिए लगता था बिकॉज व्हेन आई वाज इन द ऑफिस एरिया and I've worked with I've worked with good organizations, I've worked in teams which have more women than men, and I can say I've worked with men who are feminists, and I've never faced that as a professional, purely as a professional entering that workspace. मुझे कभी नहीं लगा कि तुम लड़की हो, so there are certain gender roles, certain things that you have to do, certain things you can't do. But on air, मुझे कई बार लगता था, why am I being made to feel as a female RJ? और ऐसा कब होता था? So there's one instance, I was thinking about it when I heard of this panel discussion. तो एक बार with my programming head मैं शो के segments discuss कर रहे थे, तो various segments आए, ये कर लो वो कर लो, तो ये सर अच्छा एक काम करते हैं, सीरियल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये है तो बहुत अच्छा आइडिया। फिर मैंने कहा अब एक और काम करें, अब आप सोचो कि जिसके लिए आप ये सेगमेंट दे रहे हो वो लड़की नहीं है, तो क्या होगा? He would never say that to a male archer. ऐसा नहीं है कि और ऑल्सो एज रेडियो प्रोफेशनल्स हमें पता है हमने ना दिनचर्या भी बनाई हुई है अपने लिसनर्स की। तो जो आफ्टरनून स्लॉट होता है हम वो विमेन आवर है, वी स्टिल हैवंट बीन एबल टू मेक आउट। कभी हम मेल जॉक डालते हैं, कभी फीमेल डालते हैं, और एक मिड मॉर्निंग जॉक का दुख मैं समझती हूँ, मैंने बड़े टाइम किया है 11 to 2, 2 to 5। वी स्टिल हैवंट फिगर आउट हु आवर लिसनर इज, व्हाट डू वी वांट टू गिव देम, हु इज गेटिंग द मार्केट शेयर। तो जब भी आप मुझे महसूस कराओगे कि मैं रेडियो जॉकी नहीं,
मैं एक फीमेल आरजे हूँ, इसलिए जो टिपिकल पोलाइट कॉन्वर्सेशंस है, सर आप चाय लेंगे, आप पानी, है ना, वो मैं बेहतर कर सकती अच्छा, और हूँ। दूसरी बात ये भी है कि हमने ना अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के डिसाइड कर लिया ये ना मेल कंटेंट ये है, मेल, फीमेल हाँ, कंटेंट ये है, जो और जो लोग सुनना चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो मतलब कंटेंट का ना जेंडर है, जिससे हाँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, है ना? तो मैं But- कहती थी कि अब सीरियल करूंगी, अगर सीरियल डिस्कस ही करना है, हाँ। एंड इट टुक 5 minutes टू एक्चुअली कम अप विद अनदर शो। अगर मैंने बोला कि आप जेंडर हटा दो जॉब का, अब आप सेगमेंट बताओ, ठीक है, क्योंकि वो सेगमेंट मेरा स्पेसिफिक नहीं था। बिल्कुल, मैं ऊपर से नीचे नहीं लगती कि मैं एकता कपूर सीरियल देखती हूँ, तो वो मेरे लिए तो बना ही नहीं था। बट क्योंकि मैं लड़की थी, ये अज्यूम किया गया था कि, एंड आई ऑलवेज आल्सो से 11 to 2 द फेमस खीरा कॉन्वर्सेशंस। आज मैं आपको बताऊंगी कि खीरे से आप मुंह पे लगाएं तो त्वचा अच्छी बन सकती है, और अगर खाने में खाएं तो आप पतले हो जाएंगे। यू नो थिंग्स, द कंटेंट, you will see content changes on radio. Sure. And when it changes because of gender, it is an issue. When it changes because of job personality, it is fine. तो what do you think कंटेंट की फ्लूइडिटी के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हम लोग सारे जो है ना बैठ के वी हैव ऑल बीन गिल्टी अगेन ऑफ सिटिंग एंड डिसाइडिंग कि ये कंटेंट है क्योंकि लिसनर यही चाहता है, क्योंकि हमारे पास 4 मैसेजेस आ जाते हैं। डू यू थिंक दैट इट इज टाइम टू एक्चुअली, डू यू थिंक वी आर गिल्टी of genderizing our content? मतलब सुजाति, what do you think? सार्थक, if you permit me, आपने जो पहला मनोज से एक सवाल किया था कि रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है कि हम यही पेश करें, तो इसको जोड़ते हुए, इसके साथ जोड़ते मैं बोलना चाहूँगी कि जो आपने माँ बहन के शो की बात कही, तो एज अ लिसनर सडनली वन डे, आई डू नॉट लिसन टू private channels often, only while traveling sometimes. So one day suddenly I heard this show, माँ बहन का show. I got a current, literally. Shock लगा कि मुझे नाम क्या है, माँ बहन का show. And I got a shock, really shock, because I've been raised in All India Radio like that, that कि हमारी भाषा, हमारा जो शब्द का चयन है वो भी इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी को चोट ना पहुंचे, क्योंकि एक बिल्कुल एक गाली की तरह मुझे मेरे कानों में एक कर्कश बोल। हाँ, तो राज्यसभा टेलीविज़न में भी इंटरव्यू किया था, तो मैंने इस बात का जिक्र किया था। तो मैंने ये कहा कि मुझे शौक लगा, हमारे जो स्लॉट्स दिए जाते हैं, दोपहर का समय जो होता है महिलाओं के लिए दिया जाता है, तो हमारे ऑल इंडिया रेडियो में जो शो है वो महिलाओं के लिए है, उसका नाम है आधा आकाश हमारा। तो आप ये फ़र्क देखिए, ये सुनने में कैची है, आधा आकाश हमारा, प्लस पोइटिक है, या फिर गृह लक्ष्मी, या फिर सखी सहेली। और हो सकता है आज का लिसनर सुनना चाहता हो वैसे, लेकिन चूँकि मैं नहीं इसको बर्दाश्त कर पाई, तो ये एक डिफरेंस है। ऑल इंडिया रेडियो के शब्दों का चयन, भाषा का चयन, वो भी बहुत ही सुंदर होना चाहिए। और मैम यहीं पे जो है कंटेंट की जो बात आती है, अगेन टू गिव यू एन एग्जांपल, जो दुनिया के आर्ग्यूबली बेस्ट नोन जॉक हैं उनका नाम है हावर्ड स्टर्न। हावर्ड स्टर्न अमेरिका के जॉक हैं। राइट नाउ ही इज द जस्ट अबाउट द ओनली सुपरस्टार ऑन रेडियो, एंड ही इज कॉल्ड द शॉक जॉक, क्योंकि वो टॉक रेडियो करते हैं और उनका कंटेंट ऐसा है कि शायद नॉर्मल लोग झेल भी ना पाए, बट ही इज अर्निंग हिज मनी फ्रॉम दैट। और वो कहते हैं कि क्यों नहीं, ये मैं करना चाहता हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपको, अगर मैं स्ट्रांग हूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालने के लिए, तो आप इतने स्ट्रांग क्यों नहीं है कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो झेल लें और उसे काउंटर करें। तो गिनी, कंसिडरिंग दैट एज यू सेड माँ बहन का शो ऑफ कोर्स इज and that is only an example, I am at pains to underline that. इसके बारे में what are your views on content? तो मुझे क्या लगता है कि पहले एक रेडियो का फॉर्मेट है, ऑल इंडिया रेडियो में मैंने काम किया है बहुत साल, और ऑल इंडिया रेडियो में आपको ये बोला जाता था कि आपका शब्दों का चयन, देयर वाज अ टोनालिटी दैट यू यूज्ड, एंड मोस्टली एवरीबडी साउंडेड सिमिलर इन व्हाट दे वर डूइंग. It was all the same stuff and you would hear it, it was all melodious, it was beautiful, it was pretty. अब क्या हुआ कि धीरे धीरे रेडियो पे, जैसे हर मीडिया हाउस है, पर्सनालिटीज़ निकलने लग गई. अब आपकी पर्सनालिटी नेसेसरीली, स्तुति की पर्सनालिटी मुझसे बहुत अलग है, हम दोनों सेम टाइम करते हैं. आपकी पर्सनालिटी मुझसे बहुत अलग है, हम तीनों सेम टाइम करते हैं 7 से 11 का. अब ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उससे आप एक्स नंबर ऑफ लिसनर्स को अट्रैक्ट करें, स्तुति की पर्सनालिटी से वो अट्रैक्ट करें, मेरी पर्सनालिटी से मैं करूँ.
धीरे धीरे पर्सनालिटीज़ निकलने लग गई. जब पर्सनालिटीज़ निकलेंगी तो कई रफ पर्सनालिटीज़ होंगी, कई इन योर फेस पर्सनालिटीज़ होंगी, कई बोलेंगी कि भाई आई थिंक दिस इज़ राइट. एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन है कि मीडिया पे क्या आपको ओपिनियनेटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. आई बिलीव होना चाहिए, शायद आप बिलीव करो नहीं होना चाहिए, but that differs from person to person, and then slowly and steadily radio stations are also depending on the fact that these personalities will grow bigger, which is the case with Howard Stern. He is what he is. Now, like me or you don't like me, you know me. That is his perspective. Regarding the content thing that Stuti said, that we make gender specific content. I don't know if it's gender specific content or on radio, because there is not enough research done as compared to any other model. हमें पता नहीं है कि क्या काम करता है, तो हम जेंडर स्पेसिफिक आवर्स बनाते हैं. Sure. तो अगर आप 11 से 2 में एक वुमन जॉग को रखोगे तो शायद उससे आप बोलोगे कि तू सीरियल्स की बात कर, पर वही वुमन जॉग अगर 7 से 11 में आएगी तो उससे सीरियल्स की बातें करने को नहीं बोला जाएगा. इट्स मोर जेंडर स्पेसिफिक आवर ऑफ प्रोग्रामिंग एज अपोज टू पर्सन. तो मुझे ऐसा लगता है कि which I think again is sorry, you wanted to say something, Suti? So 2 points. One, although I shouldn't be doing this, defending your station and your show, but but the name of the show, Ma Behan Ka, I think I mean, I completely understand, ma'am, when you say that you got a shock. I also got a shock. I was like, what is this? How could they do this? But it's also, if you realize, the only thing that is ticking. Of course. Okay, everyone's talking about it. It just got stuck. वही दुधारी तलवार वाली बात. हाँ, so one thing of course is that आप दुख मनाओ कि lowest common denominator को आप address कर रहे हो, और आजकल तो ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं. पर ये भी एक fact है that radio as a medium अब बहुत informal हो गया है. Okay, we've taken the lingo of the street. उसमें हमें एक डिस्टेंस लाना पड़ता है. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स मोर. आई थिंक नाउ इट्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव मीटिंग्स एंड यू टेल पीपल इन द पोस्ट मी टू era not to crack those jokes that couple of years back could very easily have been done by prime time male jokes. My point here is that dignity of content जो है वो एटलीस्ट मेरे लिए dignity of content आई थिंक सबके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. और मेरे ख्याल से रेडियो पे होने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये है कि आप जो कह रहे हैं उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना होता है. क्योंकि अगर आप देखा जाए तो वी हैव द मोस्ट बोरिंग जॉब इन द वर्ल्ड. हमको रोज जाके अपना स्टेशन आईडी वही बोलना होता है, वही टाइम बताना होता है, लिटरली हम लोग को वही करना होता है. बट टू कीप इट इंटरेस्टिंग वी हैव टू हैव द प्रेशर ऑफ कंटेंट इज वेरी हाई ऑन अस. और हम लोग को बहुत आसान हो जाता है कि यार एक जो है लो हैंगिंग फ्रूट आप खींच लो, लेकिन हमेशा एक तरीका जो है वही जो है वो एक जॉक को बनाता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज डिग्निटी ऑफ कंटेंट. तो नासिर आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंटेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ भी इससे पहले एक डिबेट हुआ था, उसमें ये बताया गया कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई एम अ वेरी फर्म once you talk about having opinions, very strong opinions, I think एक रेडियो होस्ट की ओपिनियन जो है वो किस सोसाइटी में रहता है, कैसे लोग उसको सुनते हैं, या उसे पता है कि अगर वो कुछ ऐसी वैसी बात बोल देगा रेडियो पे तो बाहर जाके क्या उसका रिस्पॉन्स होगा. आई थिंक दैट शेप्स अ लॉट. मुझे ये लगता है कि वी एज रेडियो जॉकीज, एज रेडियो अनाउंसर्स, एज पीपल हु आर देयर, आई थिंक रेडियो पे होना एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल थिंग है. एक स्मॉल टाइम, एक स्मॉल स्पेस से जो बंदा आता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. हमारे शहर में पहले रेडियो जॉकीज नहीं हुआ करते थे. मैं जब रेडियो जॉकी बना, आई वाज द फर्स्ट मेल रेडियो जॉकी ऑफ दैट सिटी. तो उसके बाद बहुत सारे लोग सुनने लगे. फिर ऐसा लगता था कि नहीं, अब लोग सुनते हैं तो यू कैन से एनीथिंग, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है. सो यू कैन टेक दैट एडवांटेज. बट जब आपने वो कोशिश भी की तब आपको लोग जो थे वो आपको खींच लेते थे. नहीं, ये नहीं आपको करना है. दिस इज नॉट what you want to do and this is not what we want to hear. So ये बहुत ही important चीज़ है. मुझे ये लगता है कि एक responsible factor is very important. At times we tend to get carried away जब हम रेडियो सुनते हैं. या मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहता हूँ. While I was working for a radio brand, तो एक एफ्रोडीजिएक का ऐड आया था. So हमारे को क्या होता है, रेडियो स्टेशंस में हमें मेंशन होते हैं करने, जिस मेंशन में एक रेडियो जॉकी उसको एंडोर्स करता है, बोलता है नहीं भाई ये बहुत अच्छा है. तो मैं उस सोसाइटी में रह के क्या बोलता कि एक एफ्रोडीजिएक को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ,
या ये चीज़ बड़ी अच्छी है, आप भी ट्राई करें. आई कुड नॉट. आई सेड इट वेरी कैटेगोरिकली अपने बॉसेस को कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल अगर ये हम ऐड अपनी जगह अपने शहर में नहीं प्ले करते. फिर उस पर एक और बात उठी कि भाई आप रेडियो एज वर्किंग फॉर अ रेडियो स्टेशन, आप एक मीडियम में काम कर रहे हैं, वो मीडियम एट द एंड ऑफ द डे क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है. सो उस पैसा कमाने के चक्कर में हाउ फार आर यू विलिंग टू गो? व्हाट इज द लिबर्टी यू वांट टू टेक टू अर्न दैट मनी? एक ब्रांड काउंट. Manoj had a point on this. Sarthak, in the entire debate, we have, and I'm talking to all of you, we have not even touched upon the point of commercial considerations and the tyranny of the market forces. जहाँ existence का सवाल है, one has to look at it कुछ सोच के with empathy. Of course. हम लोग समरीली कई बार कह देते हैं कि फला चैनल ने ये कर दिया, हालांकि आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. I understand certain compulsions. Having said that, compulsions है तो कुछ भी करना है, ये भी मतलब obviously. सुजाता, स्तुति एंड गिनी, माना कि आधा आकाश आपका है, लेकिन मुझे ऐसा कई बार लगता है कि, और मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ, ये बाइनरीज में देखना हम कब तक मतलब जारी रखेंगे, कब तक? That's a great point. Isn't it time now, when we talk of increasing inclusivity, to treat every living being as a unit of the universe, not as a vertex of a social polygon? ये हमें सबको साथ बैठ के करना है, ये एक अकेले हमारे बस की नहीं है. And I think in an ideal world we should not be having this panel discussion, because this should not be a point. But आपको मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगी मनोज. माना कि अब हमें उस दिशा में सोचना पड़ेगा कि सब एक है, ये डिवीजन बन, लेकिन अभी भी चाहे हमारा देश हो या विश्व हो, समाज का जो वर्ग, the section that has been looked down upon for years, उसको आगे आने में समय लगता है. चाहे उसको समय लगता है, वो एकदम से एक झटके से नहीं आ जाएगा. तभी हमारे समाज में बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर द कास्ट, फॉर द लोअर कास्ट, वॉट एवर. तो अभी भी हमको उस पर काम करना ही होगा. दैट्स व्हाई आई थिंक वी हैव टू. I think we all agree on that it's work in progress. We are on the same page, but just give me 1 minute. एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ. बात है 1984 की, 1984. पंजाब में एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था जिसके बारे में सभी जानते हैं, और आकाशवाणी के एक महिला अधिकारी को ये दायित्व दिया गया था कि आपको जो इंचार्ज ब्रिगेडियर हैं उनका साउंड बाइट रिकॉर्ड करके लाना है, बिकॉज इट वाज टू बी ब्रॉडकास्ट एज पर पॉलिसी. शी वेंट देयर. The sentry who received her was already shocked कि रेडियो स्टेशन ने किसी महिला को भेजा रिकॉर्डर लेके. तो उसने कहा रुकिए, मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब से पूछ के आता हूँ. वो गया, 1 मिनट में लौटा, कहता है कि ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि यहाँ लाशों का ढेर है, औरतें ना आए तो अच्छा है. द लेडी ऑफिसर, a very senior colleague of mine, she retorted saying, ब्रिगेडियर साहब को जाकर बताइए कि एक औरत नहीं, एक प्रोग्राम ऑफिसर आई है और वो ड्यूटी पर है. एंड ऑब्वियसली दैट दिस स्पिरिट tells you something, and this happened way back in 1984. So I just wanted to say something. I think जैसे कि हमने बोला कि आधा आकाश हमारा है और उसे हम किस रंग से और कैसे पेंट करें. आई थिंक वो बिकॉज टू अ लार्ज एक्सटेंट हमने काफ़ी हद तक इंटरनलाइज, everyone has internalized certain gender norms, certain things that we associate with what someone should do. तो जहाँ पे डिवीजन जेंडर आवर्स का था कि हम सोचते थे कि हमारा टारगेट ऑडियंस ऐसा है तो हम कंटेंट वैसा करेंगे, वो कहीं पे स्क्यूड इस तरीके से हो गया दैट यू स्टार्टेड मेकिंग डिविजन्स ऑन हाउ you even deal with that content. So I think if you ask me, like this beautiful story,
as long as we're all radio jockeys, radio Yeah. presenters, irrespective of what our gender is. Yeah. But in my head, I still do my morning show with a feminine touch. And I think if I do anything well, Of it course. is because there's so much the empathy or Yeah. the joy I derive from it. But Absolutely. jahan pe aap kisi ko, you make them feel that. You make them feel that the That- yeah. gender comes first. I think that is where. there And I is think that. this can go on for a long time, but unfortunately, old father time must march on. और हमें दिखाया जा रहा है कि थोड़ी उंगलियां जो हैं वो मैं एक बात quickly, कहना जी, चाह रहा था, जी, ये जी। आपसे भी मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग जब कम्युनिटी रेडियो की बात करते हैं तो जी। उसका दायरा और जी। उसके लिसनर्स एक सीमित एरिया में होते हैं, ठीक। जब मैं कभी मैंने अचानक अगर कहीं मैंने कमर्शियल एफएम सुना तो मैंने कुछ जो उनका मजाक का अंदाज होता है या वो टेलीफोनिक कॉल से किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं सब उसमें जो शब्द का इस्तेमाल होता है या जो उसका रिप्लाई आता है और वो गालियाँ, वो जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जब उसके ऊपर बीप डाला जाता है तो जो असल मैसेज है वो तो चला गया, क्योंकि वो तेरी और उसके बाद जो बीप आता है, मैं यानी आपने पूरा मैसेज तो दे दिया है। एक्चुअली ये एक डिबेट ऐसी है जो नहीं, मैं थोड़ा सा इसलिए ये क्वेश्चन प्लीज थोड़ा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो असल मैसेज जाना था वो चला गया, तो बीप क्यों लगाई फिर? और सर बैन हो जाएंगे नहीं तो। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप उसका उल्लंघन भी कर रहे हैं और साथ में वो चला भी दिया। एक्चुअली हम वही बात कर रहे थे कि वो लो हैंगिंग फ्रूट की जो बात है जी। कि आज अगर आप किसी बच्चे को बोले कि उसने फाट मार दिया तो वो हंसेगा ही हंसेगा। मैं इसलिए इसका कह रहा मतलब हूँ, ये नहीं है कि वो टेस्टफुल है नहीं, या वो सही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि हमारे स्टेशन में क्या होता है कि जब कॉल आती है कॉलर की, लिसनर की, जी, तो वो जो हमारे यहाँ लड़की है, महिला जो है बैठी है, उसको बेटी करके रिप्लाई आता है। सुनिए आप, उसको बेटी करके आता है या बेटा करके आता है, क्या आपके स्टेशन में आता है ये वाला रिप्लाई? जी सर, जी आता है। हाँ, अब ये हमको जब बेटी करके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये इसका जवाब ये है कि जब बेटी करके जवाब आता है तो हमें पता है कि कोई हमारे माँ, हमारे फादर की उम्र का कोई आदमी सुन रहा है हमें, तो हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, जो कि वायलेंस है एक तरीके का, तो हम वो इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि हम उस समाज के, हमको देखो, आपको तो शहर में है तो आपको जानते ही नहीं है वो लोग। ये डेफिनेटली डिबेट मैं जब मार्केट से जाता हूँ तो 25 लोग मेरे ख्याल बोलते से हैं हेमलवाणी वाला। मेरे ख्याल से हम ये वाली डिबेट जो है ये हम शाम तक जारी रख सकते हैं और हम सबके इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पर्सनली मैं एक रेडियो स्टेशन इसी वजह से छोड़ चुका हूँ, बहुत तो ये एक अलग डिबेट है अनफॉर्चुनेटली। और क्योंकि ये एक रेडियो डिबेट है, ये कंटेंट डिबेट है। अनफॉर्चुनेटली वी आर हियर as broadcasters, the temptation right now, the seduction of this debate is very strong. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ जेंडर डिबेट कर रहे हैं, तो Can I just say the last line on gender? लास्ट लाइन इज टू मनोज, बट यू कैन से द Okay, fine. You can take the gender one. Mine is not in Mine, I want to make it on gender. Yeah. So there are lots of young people out here who are possibly going to go and do radio, है ना? आप में से शायद कुछ लोग रेडियो करना चाहते हो। मैंने ये लाइन बड़ी देर से सुन रही हूँ, आधा आकाश हमारा है, किसी का आधा आकाश नहीं है, सबका पूरा आकाश है। You decide what you want to do. You decide what you're happy doing. आप decide करो कि आपके लिए as a person what feels right, what feels wrong. If you decide that gender does not enter in your thought process, it will not come through. तो आप अपने दिल की सुनो and seriously पूरा आकाश आप ही का। Just half a minute, the parting shot. आज विश्व रेडियो दिवस है। अत्यंत खेद के साथ सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से मेरे घर में टेलीविजन नहीं है। And I'm not saying it boastfully. It used to be one of my favorite media, but I don't know what happened to it, and I've returned home to radio. Wish you all a happy World Radio Day. Before we sign off, यहाँ पे जो डिबेट कंटेंट को लेके हुई, I come from a place which is considered to be a conflict zone. Now please understand the fact that while you are discussing the vibe of the city, आप सुबह सुबह रेडियो स्टेशन जाते हैं, आप all pepped up हैं, आप बहुत खुश हैं, आपको कुछ बोलना है रेडियो पे, you have done your preps, you want to say something and अचानक से कुछ हो जाता है. Then as a radio jockey, what would you do? My primary goal there being
on the mic is to make people happy about what is happening in the city and tell them. एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रेडियो करना पिछले 10 साल से बहुत ही मुश्किल चीज़ है, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ रही है, बिकॉज कभी कभी हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि कहीं हम कुछ अगर कहीं हो गया है तो कहीं हम वो लाइन क्रॉस तो ना कर जाएं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लिसन टू रेडियो. एंड 2013 में ऐसा हुआ, 2014 में ऐसा हुआ, 2016 में ऐसा हुआ दैट अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू शट द रेडियो स्टेशन. वाई? Because the mood, the vibe of the place was such that we could not have played any content which we wanted to do. So हमारे इलाके में रेडियो करना has a different challenge to it altogether. यहाँ रेडियो जब मैं यहाँ की जब मैं बात सुनता हूँ या यहाँ जब मैं आता हूँ, यहाँ इतना केयर फ्री रेडियो किया जाता है. As we were talking about like जो मुद्दे वहाँ पे हैं उनके बारे में तो यहाँ बात होती नहीं है, मतलब वो सोचते ही नहीं है. बट देयर अगर हमें जोक भी क्रैक करना पड़ता है, हमें 10 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. सो यहाँ की अगर हम बात करें एन एंटायरली अ डिफरेंट यूनिवर्स वाइल यू डू रेडियो. वहाँ की अगर हम बात करें एन एंटायरली अ डिफरेंट यूनिवर्स. शायद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, शायद इसका अगला एडिशन जो है वो शायद श्रीनगर में हो, ताकि वहाँ भी लोग आएँ. आप बुलाएं, हम सब आएंगे. ताकि और मेरे ख्याल से एक बात तो माननी पड़ेगी ना नासिर. एब्सोल्युटली, ताकि वहाँ भी लोग आएँ. जितने ये हमारे दोस्त हैं जो रेडियो करते हैं उन्हें ये बात समझ आए कि कैसा होता है कॉन्फ्लिक्ट जोन से रेडियो करना. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बस थैंक यू वेरी मच. मेरे ख्याल से डिबेट्स और कंटेंट की बातें तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन एक बात तो सच है और वो है कि यार रेडियो प्यार है. और प्यार होना जो है ना, वो एक फीलिंग जो है वो हम सबको पता है. और मेरे ख्याल से अगर आप रेडियो ट्यून इन करके वो फील ले सकें तो आपको सच्ची में पता लगेगा कि द पावर ऑफ द मीडियम इज नॉट इन कैप्चरिंग, बिकॉज रेडियो इज नॉट अ कैप्टिव मीडियम. आप कुछ भी कर सकते हैं रेडियो सुनते हुए, और इसीलिए रेडियो इज द मोस्ट कंपेनियनेबल ऑफ मीडिया. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव ऑफ द मीडिया दैट वी लव so much. Thank you very much for being here.